Yes, The Country of the Blind. We discussed in the last class. It is a story of H.G. Wells. What is the? So, what is the story about? What is the story about? What is the story? किस बारे में बताइए? पिछले क्लास में क्या समझा है? What is the story about? हाँ तो कहाँ? हाँ लोगों के हाँ इसका कैरेक्टर, इसका हीरो कौन है इस फिल्म? ओके, इसका हीरो कौन है? हु इज द हीरो? मैम एक माउंटेन से ना, मतलब एक पर्वत ना गिर जाती अंधेरे के गांव में। नन जो है मैम, NUNE। यूनियस। और उसका ना राजा वो बनने की कोशिश करता है। लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या कीजिए आप? किसी भी कहानी में क्वेश्चन आंसर नहीं होती है तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। मैम वो कर लो। और मैम ये पब्लिश हुआ था 1904। ओके, ऑल राइट, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू मेक नोट्स। अगर आपके पास कंटेंट है तो ठीक है, फाइन। इस बावजूद इसके, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव द कंटेंट, राइट डाउन द नोट्स. If you do not write the notes, you will never be able to understand. Create a habit of note taking. और अगले क्लास में आपका मार्क्यू लेंगे हम। मार्क्यू समझते हैं ना? मंथली असेसमेंट रिवीजन क्विज। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है उसका क्वेश्चन आंसर होगा। एंड ओरल ही लेंगे, इसलिए अगर नहीं जवाब देंगे तो मार्क्स हम जैसा जवाब, जैसा रिस्पॉन्स, similarly the marks will be given according to the response that you give me. All right, The Country of the Blind, and the next class will take up something different. किस चैप्टर का लीजिएगा मैम? जितनी भी पढ़ाई हुई है वो सब कर लेंगे, ठीक है? All right, The मैम Country of जो आप पढ़ाई है ना, या पूरा मैम? अब हम जब कह दिए कि whatever I have taught you, only then, only those chapters. मैम सिंगल ग्रुप में? No, not in a group. Okay. The Country of the Blind by H.G. Wells. H.G. Wells, his full name is Herbert George Wells. He was born on 21st September 1866. You need to remember when he was born, when he died. Okay. He was born in 1866 at Bromley, Kent, England, and he died on August 13, 1946. He was an English novelist, journalist, sociologist, and historian. It means he was very well read, very well educated. A visionary writer. It means he used to think about the future and he used to write. He had a vision. आगे की सोच के वो लिखते थे. And he came from a working class background. और working class का मतलब होता है middle class background. His father played professional cricket. Okay. उनके father क्या थे? एक cricketer थे. And ran a hardware store for a time. At the age of 17, Wells had an accident and left him bedridden for several months. तो एक एक्सीडेंट के बाद
वो बेड रिडन हो गए थे, मतलब कि बेड से उठ नहीं पाते थे, और वो कई दिन तक वो बिस्तर पर ही उन्होंने बिताया। His education, Normal School of Science, London. He is best known for his such science fiction novels as the Time Merchant, the Time Machine, and the War of the Worlds, and such comic novels as Chernobyl and the History. Other works जो उन्होंने लिखा था, The Invisible Man, The War of the Worlds in 1898, When the Sleeper Wakes, Love and Mr. No, when the sleeper wakes, what does it mean? सोने वाला जब जाग जाता है. The invisible man का मतलब क्या होता है? जो अदृश्य इंसान है. And then there are some other novels which he wrote: Love and Mr. Lucian, and the first man in the first man in the moon, which was in 1901. Now about Country of the Blind. When you will introduce the author, you will have to write about where he was born, when he was born, when did he die, and what were his stories, what were the works included, what did he write about, what were the names of the novels and the stories. तो आपको जब भी इंट्रोड्यूस करना होगा तो कुछ चीजें जो बहुत टेक्निकल चीज है, फैक्ट्स है, उसको आपको इंक्लूड करना होगा. Now, as I said about the Country of the Blind, this story is about a young man. His name is Nunez. There are 4 characters in this story. I told you the 4 characters. The first is Nunez, and he is a mountaineer. A mountaineer is a person who climbs mountains. Mountaineer. Okay. The second character is Jacob. Jacob is an elderly man, and he is the chief of the Country of the Blind. Jacob. And the third character is Medina. Medina Sarot is Jacob's daughter, whom Nunez meets. Then he was working at her house, and then he falls in love with Medina. Now the story starts when the mountaineer Nunez is climbing the mountain. शुरू कहाँ से हो रही है? जब Nunez अपने companion के साथ, when Nunez was climbing a mountain. The name of the mountain is not real mountain, but it is a fictitious, एक काल्पनिक नाम है, Parascotopetal. So they were trying to climb this mountain. So at night time they used to rest, और दिन में वो लोग climb करते थे. और एक रात जब वो लोग विश्राम कर रहे थे, when they were resting, तो उसके टेंट का एक सिरा ढीला हो जाता है, और उसको फिक्स करने के चक्कर में he falls down. उसका एक सिरा को लूज जो था उसको बांधने के चक्कर में बांधने के क्रम में वो गिर जाता है और अपने आप को पाता है इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड. अब ये लोग ब्लाइंड कैसे हुए? हाउ दे बिकेम ब्लाइंड? The story says that after an earthquake, there was some disease which was like an endemic, and all the people of that place became blind, and all the children who were all the newborn, all the children, they were blind by birth. So Nunez falls into this mountain, falls this
falls from the mountain into this country of the blind, where every person is blind. So in this tale, in this story, a mountain climber, Nunez, a mountain climber, you can replace this with a mountaineer. Nunez falls off into a strange and isolated world. The meaning of strange is in Hindi अजीब, and isolated एक जगह, एक प्लेस जो कि कट ऑफ था वर्ल्ड से, आइसोलेटेड था, ना वहां कोई जा सकता था और वहां से कोई निकल भी नहीं पाता था. Nobody can go inside that country and nobody can come outside because it was surrounded by steep mountains. वो country घिरा हुआ था और surrounded by mountains, और mountains भी वैसे नहीं जिसमें आप चढ़ सकते हैं, स्टीप था, बिल्कुल सीधा, तो गहरी खाई की तरह था और चढ़ना मुश्किल था उस पर. ओके, falls off into a strange, अजीब and isolated, एक कट ऑफ, एक अलग थलग isolated जगह थी, which is inhabited by the blind people, जिसमें inhabited means जिसमें blind लोग रहते थे, who claim to have been in existence for about 15 generations, और 15 जनरेशन से लोग वहां रह रहे थे. मैम क्लाइमर क्या होता है? क्लाइंबर, यस क्लाइंबर, क्लाइम करने वाला, चढ़ने वाला. माउंटेनियर कौन किसको बोलते हैं? जो कि माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेनियर. ठीक है, क्लाइंबर जो चढ़ने वाले. आप देख रहे हैं, आपके सामने कंटेंट है. किसी भी वर्ड को अगर स्किप हम कर रहे हैं तो आप मत स्किप कीजिए, आप तो रोक के पूछिए जरूर. और ये कट ऑफ था, ये जगह ऐसी थी, बहुत खूबसूरत जगह थी, नीट एंड क्लीन थी, लेकिन हर तरफ से ये माउंटेन से घिरा हुआ था. एंड फॉर 15 जनरेशंस, 15 जनरेशन से ये कट ऑफ था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कैसे हुआ था? बाय एन अर्थक्वेक, और एक अर्थक्वेक हुआ था, एक भूकंप के बाद, इन एन अर्ली इयर्स ऑफ द फाउंडेन, मतलब शुरुआती दौर में एक अर्थक्वेक हुआ था जिसके बाद से ये बिल्कुल अलग हो गया था. Nunez decides to rule them as he was wise and learned. और न्यूनेस वहां गिर जाता है और अपने आप को पाता है उन लोगों के बीच जो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे, जो उनकी सुनना भी नहीं चाह रहे थे, और जो ये सोच रहे थे कि न्यूनेस इज ए न्यूली फॉर्म्ड मैन, ये इंसान नया नया बना है, इसीलिए इसको लैंग्वेज नहीं आता है. वहां के लोग इसकी भाषा नहीं समझ रहे थे और वहां के लोग इसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे. जब न्यूनेस ने कहा कि मैं देख सकता हूँ, तो वो लोग इसका मजाक उड़ाए, कैसी कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक आईसाइट, कोई किसी ने कभी देखा ही नहीं है, तो तुम कहाँ से देख सकते हो. और उस पर एक ठप्पा लग गया कि ये पागल है और ये बे सिर पैर की बातें करता है और ये डिजीज्ड है, मतलब इसको इसकी आंखों में कोई बीमारी है जिसका असर इसके दिमाग पर भी पड़ गया है, इसलिए वो बेकार की बेतुकी बातें करता है. और उसका लोग उन लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया. और जब न्यूनेस गिरा था तो उस वक्त रात थी, इट वॉज नाइट टाइम. अब कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में दिन को लोग सोते थे, इसलिए कि धूप की रोशनी में उनको आराम मिलता था, तो दिन के वक्त वो लोग सोते थे और रात में वो लोग उठ के काम करते थे. जो भी काम विलेजेस में लोग जो काम करते हैं, खेत का काम, घर का काम, व्हाटएवर काम, जो भी काम, दिन का वक्त होता था उनका सोने का, धूप की रोशनी में वो आराम मिलता था, वो सो जाते थे और रात में वो लोग उठ के काम करते थे. तो ये रात में न्यूनेस वहां गिरा था और तभी उन्होंने देखा कि वहां 2-3 लोग वहां पर आ रहे और विलेजर्स से मुलाकात होती है. एंड दीज पीपल दे डू नॉट बिलीव हिम एंड दे फील दैट
and they tell him that you are not normal, तुम पागल हो और तुम डिजीज्ड हो, तेरी आंख में कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ गया। और नूनेज नाराज हो जाता है, झगड़ा भी करता है उन लोगों से, he fights with them। और 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत जाता है। न्यूनेज बहुत भूखा है, जहां तहां उसको चोट भी लगी है, और वो सबसे परेशान हो गया कि वो भूखा था और उसको चोट लगी हुई थी। तो वो हार मान लेता है, बोलता है कि ठीक है आप जो भी कहेंगे आपको। वो सोच लेता है कि पहले तो सोचा था कि मैं इनका रूलर बनूंगा, ये लोग सीधे साधे लोग हैं, लोग अनपढ़ लोग हैं और मैं पढ़ा लिखा हूँ, एंड आई विल रूल देम। तो वो सोचता है कि इस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में एक मैं हूं तो हूँ जो देख सकता हूँ, और मैं इनका राजा बनूंगा, आई विल बी द किंग एंड आई विल रूल देम। लेकिन उसकी मंशा थी, व्हाटएवर उसकी जो सोच थी, it could not materialize because the people did not accept Nunez. And however, his attitude seems strong in a society where no one believes what is the meaning of seeing, and rejects his proposal to be taught by him। और उसका proposal लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसका मजाक भी बहुत उड़ा। The villagers are satisfied and still operate perfectly। तो villagers देख नहीं सकते थे, लेकिन they were satisfied with themselves and they could manage everything। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 15 साल से वो लोग अपनी गृहस्थी, अपना कंट्री चला रहे थे। Virtually imprisoned and reduced in importance to serve them। और फिर न्यूनेस क्या हो गया, वर्चुअली वो बिल्कुल थक गया था, हार गया था, हंग्री था, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ठीक है आप जो कहेंगे मैं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी समथिंग टू ईट। तो उन्होंने खाने के लिए डिमांड किया और फिर उसको ले जाया गया याकूब के पास, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग टू लिव। वो जीने कैसे जिया जाता है ब्लाइंड लोगों के बीच में, उसने धीरे धीरे वो सीख रहा था। Nunez begins to learn living with his disability, his sight। और जो भगवान की सबसे बड़ी जो नेमत है, अब उसको भी लोगों ने ठुकरा दिया था, और वो कैसे इस चीज को कैसे लेके आगे बढ़ता है, ये इसकी कहानी है। तो याकूब के पास उसको ले जाया जाता है, जो कि वहां कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का चीफ था। Eventually he falls in love with Marina Sarot। अब याकूब के पास जो कंट्री का चीफ है, वहां वो एक नौकर की तरह काम करने लगा, बिकॉज और दूसरा कोई there was no other choice, and there was no other choice but to live with them, to work for them, because it was really impossible to get out of the country of the blind। और वहां पे he falls in love with the daughter of Jacob, and her name is Marina Sarot, the daughter of the chief Jacob। He gains the permission to marry her only if he is willing to abandon his eyes। तो जब इसने प्रपोज किया that he wants to marry Marina, तो सभी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और सभी ने कहा we cannot allow our daughter to marry someone who is not normal and who is diseased, but only if you are willing to have your eyes taken out, you will be permitted to marry Marina। और तभी तुम शादी कर पाओगे जब तुम भी उनकी तरह हो जाओगे और अपनी आंखों को निकलवा लोगे। इसलिए कि सारी जो फसाद की जो जड़ है, सारे जो प्रॉब्लम्स जो अराइज हुआ है, वो तुम्हारे आईज की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड ब्रेन भी तुम्हारा अफेक्टेड हो रहा है। So he gains the permission to marry her only if he is willing to abandon his eyes। कि अपने आंखों को तुम निकलवा लोगे तभी तुम शादी कर सकते हो।
which are deemed the course of an irrational outburst which occurs in the beginning of this imprisonment and have them removed. और फिर वो सोचता है कि बिल्कुल for love वो तैयार भी हो जाता है और जानता है कि ये बहुत irrational है, ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है कि किसी देखने वाले इंसान को, किसी पढ़े लिखे इंसान को कोई ये कहे कि तुम ये आंखें निकलवा लो, तो ये बहुत ही उसको इरेशनल लगा, मतलब कि ये बात उसको हजम नहीं हुई। लेकिन अब वहां रह रहा था और ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। एंड सेकेंडली ही वाज आल्सो इन लव, तो वो तैयार हो जाता है। So when he finally has to choose between his love and the one of his most important things, senses his sight, he chooses the latter, but then decides to break out. बाद में सोचता है कि अगर उसको चूज करना होगा लव और आईसाइट में, तो बाद में वो क्या चूज करता है कि ठीक है, वो बाहर भी निकल जाता है और सोचता है कि कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से निकलने की वो तरकीब बना लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। The whole story is a reversal of his idea of disability. अब पूरी जो कहानी है, यही पूरी कहानी है। एक पढ़ा लिखा इंसान excuse me, कभी भी अपना आईसाइट को छोड़ नहीं सकता है। Yes, ma'am. Okay. Let us continue. Yes, ma'am. तो जैसा कि कहानी में जो बताया गया है, हर कहानी एक मॉडल देता है। एवरी स्टोरी विल टेल यू हर कहानी में आप कुछ नई बात सीखते हैं और कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिनसे देख करके आप समझते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जब भी कोई परेशानी में आपको इंसान पड़ता है तो अपनी विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेनी चाहिए। तो कहा जाता है कि दिल पे सुनोगे या अपने दिमाग पे सुनोगे, तो हमेशा जो दिमाग पे सुनता है, जो अपना those who listens to his mind, जो इंटेलिजेंटली सॉल्यूशंस निकालता है, उसके हमेशा जीत ही होती है। लेकिन जो दिल पे अगर हर पे छोड़ दीजिएगा, अगर दिल पे छोड़ी जाए हर बात, तो हो सकता है कि कोई बहुत डिसीजन गलत भी हो जाता है। तो दिस स्टोरी टीचर्स यू किस तरह से वो उसने अपने विवेक से काम लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया। और जैसे कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। तो आखिरी बार वो सोच रहा था कि चलो यहाँ रहेंगे तो आई विल मैरी मदीना सरोवर, ठीक है, लेकिन जिंदगी भर अपनी आंखों को निकलवा करके, और आंखें जो कि इतना बड़ा गिफ्ट है फ्रॉम गॉड, उसको मैं यूं ही निकलवा लूं, इसलिए कि दो चार जन यहाँ पर जो रहते हैं उन्हें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो वो तो बेवकूफ हैं, इसलिए कोई जानते ही नहीं, बेवकूफी की बात ही नहीं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं, वो कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में रह करके, और मुझे जो इतनी बड़ी जो गिफ्ट मिली हुई है, ये आंखें जो हैं, तो सब इतनी नेमत की बात है, उसको मैं ऐसे लोगों के लिए निकलवा दूं जो कि इसकी कीमत कभी जानेंगे ही नहीं, कभी जानते ही नहीं है। और ये सब सोच करके वो सोचता है क्या, पहले वो सोचता है कि ठीक है मैं अपनी आगे निकलवा लूंगा, बिकॉज कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और वो तैयार भी हो जाता है। और शाम के वक्त जब अगले दिन इनकी शादी इनका ऑपरेशन था आँख का, तो वो सोचता है उसी दिन वो सोचता है, एक शाम पहले वो सोचता है कि वो बहुत सोचता है, फिर इस निष्कर्ष पे आ जाता है कि इतनी बड़ी पूरी जिंदगी अपनी आंखें निकलवा करके, और ऐसे लोगों के बीच में जो कि उसका वैल्यू कभी समझेंगे ही नहीं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। और फिर वो डिसाइड करता है कि चुपके से वो बिना किसी को बताए वो पहाड़ों की तरफ निकल लेता है और अपना रास्ता ढूंढ लेता है वो,
और आगे बढ़ के वो अगर वो पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह से वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से और उसकी जीत यहाँ पर ये होती है कि कम से कम उसको अपनी आंखें निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो वहां से निकल पड़ता है। तो इसका 2 एंडिंग है, और सेकेंड एंडिंग में क्या होता है हम इसको पढ़ देते हैं आपके लिए। द होल स्टोरी इज अ रिवर्सल ऑफ द आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी, कि किस तरह से जो दिमागी तौर से डिसेबल्ड है उनके साथ रहना कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। जो अपाहिज हैं, जो नहीं देख सकते हैं, नहीं देखना और बात है, लेकिन दिमागी तौर से भी वो अगर डिसेबल्ड हैं, कुछ सीखने को तैयार नहीं, कुछ समझने को तैयार नहीं, और अपनी एक सोच बना ली है, अपनी सोच से आगे नहीं निकलेंगे, तो इनके ऐसे लोगों के साथ रहना कहाँ तक बुद्धिमानी। The experience of being an unknown stranger seems to be the major point of this story. और ये अंत तक अपने आप को बिल्कुल अजनबी बनाया, अजनबी की तरह वहां रहता था। वो न मिल पाया न घुल पाया, लेकिन एक मौका मिला तो उसको वहां से वो निकल भाग लेता है। और दो एंडिंग है, एक तो होता है बिना किसी को बताया निकल जाता है, और दूसरी बार उसने देखा कि फिर भूकंप आ रहा है, एक रॉक स्लाइड हो रहा है, वो पत्थर को मूव करते देखता है और सबको आगाह कर देता है। ही वॉन्स कि फिर से स्लाइड होने वाला है, और आप बचने के लिए उन्होंने सबको वार्न करता है, बताता, चेतावनी देता है, लेकिन फिर आखिरी बार भी उसको उसकी बातों को सुना लो कर देते हैं। और बोलता है ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो पागल है, ये कभी सुधरेगा नहीं, और ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये तो देखता है कि बिल्कुल रॉक हिल रहा है और रॉक स्लाइड हो रहा है, और वहां पर मेलिना सरोवर भी रहती है। वो मेलिना सरोवर का हाथ पकड़ता है और बहुत तेजी से वो भागते हुए कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से बहुत आगे दूर निकल जाता है। तो दूसरी एंडिंग में एच.जी. वेल्स ने ये दिखाया है कि आखिरकार वो उस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो अपने जिसको वो इतना लव करता था, मेलिना सरोवर के साथ वो बाहर निकल लेता है, और वहां से अपनी नई दुनिया बसाने के क्रम में उसका पहला कदम होता है, और वहां से वो निकल लेता है। तो ये कहानी है एच.जी. वेल्स की। और ये पहले वाली कहानी में वो अकेले जाता है, वो सोचता है कि मैं तो मरूंगा या जीऊंगा, मुझे कितनी मुश्किलें आएगी, लेकिन मेलिना सरोवर तो बहुत कंफर्टेबली यहाँ रहती है, अपने अपने लोगों के बीच रहती है, अब मैं कहाँ इसको ले जाऊंगा। अब बहुत लोगों ने कहा कि कैसा वो था, उसका लव तो सच्चा नहीं था, और लव तो सच्चा होता तो उसके साथ में रह जाता। लेकिन उसने फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वो उसने दिया है कि क्यों किसी लड़की को अपने साथ ले जाऊं जो कि यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है और यहाँ के लाइफस्टाइल को वो जानती है और सबके बीच रह रही है, और मेरे साथ जाएगी तो मेरा तो अपना ठिकाना ही नहीं, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, कि कहीं रास्ते में जानवर खा लेंगे, कि क्या होगा, मेरे साथ को नहीं आता है। तो अपने साथ इस लड़की को क्यों, इसकी जान क्यों जोखिम में मैं डालूं। तो पहली बार पहला एंडिंग में वो अकेला जाता है, और दूसरे एंडिंग में वो अपना उसका हाथ पकड़ के वो आगे की तरफ निकल जाता है। The climax of the story, climax story क्या है, is the end where he has to decide whether his sight is more important or his love. और इस क्लाइमेक्स यही है कि आखिरकार वो डिसाइड कर लेता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है, प्यार इम्पोर्टेंट है या आईसाइट इम्पोर्टेंट है। तो उसके भी जस्टिफाइड है, ऑफ कोर्स लव इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कहाँ तक बुद्धिमानी है कि ऐसे लोगों के बीच में जो कि आईसाइट जानते नहीं है, और एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट है, बहुत बड़ा जो ब्लेसिंग है, आईसाइट है, उसको मैं जाया बेकार क्यों करूं। और ऐसे लोगों के लिए जो कभी समझेंगे नहीं इस बात को, और मैं ही जब हो जाऊंगी डिसेबल्ड तो मैं दुनिया कैसे देखूंगा, मैं दुनिया आगे की दुनिया बिल्कुल अंधेरे में क्यों डालूं अपने आप को। और ये सोच करके वो उसने विवेक से काम लिया और अपने इंटेलिजेंस से काम लिया, और वो वहां से बाहर निकल लेता है। तो दिस इज द स्टोरी। The second ending, Jonas decides to take Marina with him, which speaks for itself that love is the greatest of all virtues. और दूसरी एंडिंग में जो है वो मरीना के साथ निकल लेता है, यहाँ बोलता है, फिर यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में क्या है, वो सब वर्च्यूज से सब अलग है। So love is the greatest of all feelings, of all virtues. तो ये स्टोरी है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड।
अब इसका एनालिसिस है, एनालिसिस भी आपको समझा देंगे ताकि आप कहानी आगे बढ़ने में भी समझ में आपको आ जाए। और एक क्लास आपको और लगेगा इसमें, we will be discussing the question and answer and analysis, क्या हुआ, कैसे कैसे किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी, और पूरी कहानी एक, किसी भी कहानी को समझने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार हर पहलू से समझेंगे आप तो इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक क्लास आपको और इसमें I will give you one more class and we'll discuss all the 10 question answers. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am.